ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام زہرا ہے۔ ابھی میری عمر تقریباً 18 برس ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن ابا اتنا کما لیتے تھے کہ گھر کا چولہا جل جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا۔ جب ابا کا انتقال ہو گیا تو نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ دو دن گھر میں کچھ کھانے کو نہ بنتا۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ کسی کے گھر میں ان کو صفائی کرنے والا ہی کام مل جائے، لیکن اماں کو کہیں کام نہیں ملا تھا۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی تھیں۔ آخرکار اماں کو اسپتال میں صفائی کرنے کا کام ملا۔ اس وقت ہم پر اس قدر غربت چھائی ہوئی تھی کہ اماں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اماں بوڑھی تھیں۔ میں نے اماں کو بہت بار کہا، آپ کی عمر کی وجہ سے شاید عورتیں آپ کو اپنے گھر کام پر نہیں رکھتی، تو میں کر لیتی ہوں لوگوں کے گھروں کے کام۔ جب میں ایسی بات کرتی تو اماں پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ میں بہت حسین تھی۔ اس وجہ سے اماں مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ لیکن اماں اسپتال چلی جاتی تھیں۔ رات کی بھی اماں کی وہاں کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر ہی اماں سوتی تھیں۔ میں نے کافی وقت گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن اماں کام سے واپس آئیں تو اچانک سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ سر چکرا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اماں نے کہا، تیری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں مجھ پر شک کر رہی ہیں۔ میں اماں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی مجھے اسپتال لے کر جائیں، کیونکہ اسپتال جانے کو تو پیسے ہی نہیں تھے۔ لیکن اماں کہنے لگیں، جس اسپتال میں صفائی کرتی ہوں اسی میں تجھے لے کر جاتی ہوں، وہ مجھ سے پیسے نہیں لیں گے۔ میں بھی مان گئی اور اماں کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں پر ایک جوان عمر کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کبھی میری ماں کو دیکھتا تو کبھی مجھے۔ پھر میری ماں سے پوچھنے لگا، یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میرا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس کمزوری کی وجہ سے سر چکرا رہا ہے۔ میں کچھ دوائیں لکھ کر دیتا ہوں، آپ باقاعدگی سے لیتی رہیں۔ ان کی بات سن کر اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں اسپتال سے باہر آ گئی تھیں۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی ڈاکٹر کھڑا مجھے پیچھے سے گھور رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی وہ اپنا کام چھوڑ کر میرے پیچھے کیوں آیا ہے۔ میں نے اماں کو کچھ نہ بتایا۔ گھر آ کر میں لیٹ گئی تھی، لیکن رات کے 12 بجے اماں کا موبائل بجنے لگ گیا تھا۔ میری آنکھ کھلی، لیکن اماں کو یہی محسوس کروایا تھا کہ میں سو رہی ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اماں کسی آدمی کے ساتھ میرے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں جب اٹھی تو کمرہ باہر سے لاک تھا۔ مجھے غصہ آیا، اماں مجھے کمرے میں بند کر کے کیوں چلی گئی تھیں؟ مجھے اکیلے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اماں فجر کے وقت گھر آ گئی تھیں۔ اس کے بعد اکثر اماں رات کو بھی گھر سے باہر چلی جاتی تھیں۔ ایک رات اماں بہت دیر سے آئی تھیں اور مجھے ایک سوٹ دے کر کہنے لگیں، یہ ڈال کر سو جانا۔ میں نے اس سفید لباس کو دیکھا تھا۔ اماں تو مجھے ایک ہی سوٹ لے کر دیتی تھیں، یہ تو کسی یونیفارم کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں، اگر تم یہ ڈال کر سو جاؤ گی تو اس طرح ہم بہت پیسہ کمائیں گے۔ ان کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ بھلا کیسے پیسہ کمانا تھا؟ یہ بات مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، آپ پہلے مجھے بتائیں، اگر میں یہ ڈال کر سو جاؤں گی تو ہم کس طرح پیسہ کمائیں گے؟ اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ پھر وہ کہنے لگیں، یہ سفید کپڑے ڈالو، تم بھی نرس بنو گی، تم بھی بہت سارا پیسہ کماؤ گی جیسے اسپتال میں لڑکیاں کماتی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ میں نے اماں سے وہ کپڑے لے کر پہن لیے تھے۔ اماں میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو، چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ چکا ہے۔ میں تمہارے لیے دودھ لائی ہوں، یہ پی لو۔ اماں کا بدلا ہوا رویہ مجھے کچھ کھٹک رہا تھا۔ وہ یوں اچانک سے میرا اتنا کیوں خیال رکھنے لگ گئی تھی؟ میں نے وہ سفید کپڑے پہن لیے اور جب میں نے دودھ پیا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا سر چکرا رہا ہے۔ نیند سے آنکھیں بند ہونے لگ گئی تھیں۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں سو گئی تھی۔ یوں دوسرے دن صبح میری 10 بجے آنکھ کھلی تھی۔ میرے سارے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا درد سے جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے بازو پر دیکھا جہاں ناخنوں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی کلائی پر دیکھ رہی تھی۔ یہ نشانات کہاں سے آئے تھے؟ میں ان پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا زور سے بازو پکڑا ہو۔ سارے جسم میں بھی درد ہو رہا تھا۔ میں نے گھر میں دیکھا تو اماں بھی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب اماں کام سے گھر واپس آئیں تو ان کے آتے ہی میں نے انہیں اپنی کلائی دکھائی
और उनसे पूछा मेरे सारे जिस्म में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे साथ रात को क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर अम्मा घबरा गईं और मुझे घबराते हुए कहने लगीं कि तुम रात गहरी नींद में इस तरह सोई हुई थी कि अचानक से बेड से गिर गई थी। मैं तुम्हें अकेले बहुत मुश्किल से उठाकर बेड पर लेकर गई थी, जिसकी वजह से मेरे ही नाखून तुम्हें लग गए थे। लेकिन मुझे अम्मा की बात झूठ लग रही थी। आज से पहले तो मैं कभी बेड से नहीं गिरी थी। अम्मा कुछ तो मुझसे छुपा रही थी। मैंने एक दफ़ा फिर से अपनी कलाई की तरफ देखा, लेकिन ये नाखूनों के निशानात अम्मा के नहीं लग रहे थे। लेकिन मैं खामोश हो गई। अम्मा से झगड़ तो नहीं सकती थी, लेकिन सारा दिन मेरे जिस्म में बहुत अजीब सा दर्द था। रात होते ही अम्मा कहीं जाने लगी थी। मैंने जब अम्मा से पूछा तो वो मुझे कहने लगी, अब मेरी रात की ड्यूटी लग गई है, इसी वजह से मेरे आने तक सोना मत। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मैं रात गए तक अम्मा का इंतज़ार करती रही थी। अम्मा ने काफ़ी देर लगा दी थी। मैं तंग आकर छत पर आ गई। छत पर आके मैंने इर्द गिर्द देखा, हर तरफ सारे घरों की लाइट्स बंद थी। सारे मोहल्ले में से एक हमारे घर ही की लाइट जल रही थी। मैं सोचने लगी, इर्द गिर्द वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं नीचे आ गई, इतने में अम्मा भी आ गई थी। आज फिर अम्मा के हाथ में एक और सफ़ेद रंग का सूट था, वो भी मुझे किसी यूनिफॉर्म की तरह लग रहा था। मुझे अम्मा कहने लगी, अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो तुमने कहना है कि मैं नर्स बन रही हूँ। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा, वो मुझे झूठ बोलने का क्यों कह रही थी। आज भी अम्मा ने मुझे वो कपड़े देने के बाद दूध का गिलास दिया और आज भी मैं यूं ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने बेड पर देखा, मेरी चूड़ियाँ टूटी हुई पड़ी थी। मैं उन चूड़ियों को देखने लग गई थी। मेरी कलाई में एक भी चूड़ी नहीं थी। ये सारी कैसे टूट गई थी? मैं अपनी कलाई पर फिर से देख रही थी। टूटी हुई चूड़ियों के निशानात मेरी कलाई पर मौजूद थे। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया, कमरे की हालत देखने लग गई। मेरे कमरे का सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मैं सोचती रही कि आज रात फिर मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अम्मा के कमरे में गई। अम्मा कमरे में मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके तकिए के पास बहुत सारे नोट पड़े हुए थे। 5-5 हज़ार वाले भी थे और कुछ हज़ार वाले भी थे। मैं हैरत से वो नोट देख रही थी। मैंने उठाकर देखे तो वो बिल्कुल नए नोट थे। ये अम्मा के पास कहाँ से आए थे? मुझे हैरानगी हो रही थी, ये किसने दिए थे अम्मा को? अम्मा की इतनी बड़ी तो नौकरी नहीं थी जो अम्मा के पास इतने सारे पैसे आते। वहाँ पर कुछ और तस्वीर भी पड़ी हुई थी। मैं हैरत से उन तस्वीर को देखने लग गई। वो मेरी तस्वीरें थीं, उसी लिबास में जो मैंने पहले दिन सफ़ेद लिबास डाला था, लेकिन मैंने तो कोई तस्वीर नहीं बनाई थी। ये कुर्सी पर बैठे हुए मेरी तस्वीर कब और किसने बनाई? ये सब कुछ देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मैं परेशानी की आलम में अम्मा के कमरे से बाहर निकल आई थी। अचानक से दरवाजे पर किसी ने दस्तक देना शुरू कर दी। मैं हैरान हुई, इस वक्त कौन आ गया है? अम्मा तो इस वक्त नहीं आती थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही हमारी पड़ोसन खड़ी हुई थी। मुझे हैरत से देखने लगी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रही हो? वो मुझे देखकर कहने लगी, आप ठीक हो? मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे सामने ही तो बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ, लेकिन रात तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा, क्या मतलब है? रात को तो मैं सो रही थी। वो मेरी पड़ोसन किसी तरह मान ही नहीं रही थी और मुझ पर शक करते हुए वो बार बार मुझसे पूछे जा रही थी कि तुम्हें रात को क्या हुआ था, तुम क्यों रो रही थी, मुझे बताओ, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, अगर तुम्हारी अम्मा ने कुछ कहा है तो बताओ। वो हमदर्दी से पूछ रही थी। मुझे लग रहा था ये वैसे ही मेरे साथ ऐसे कोई मजाक कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। मुझे हैरानगी ने आन घेरा था। मैंने उसे कहा कि तुम इस बात को छोड़ो और बताओ कि घर में सब कैसे हैं। मैं उसके साथ बातें करने लग गई थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान उसकी पहले वाली बातों की तरफ था। उसने मेरे साथ ऐसी बात क्यों की थी? मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं रात को चीखती, चिल्लाती या रोती तो अम्मा ने तो मुझे बताना था कि मैं ठीक नहीं हूँ। अम्मा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। इसी बात ने मुझे और ज़्यादा परेशान किया हुआ था। ऊपर से वो पैसे, फिर मेरी तस्वीर। अचानक मुझे उस रात वाली अम्मा की बातें याद आ गई थी जो अम्मा किसी आदमी से मेरे बारे में कर रही थी। लेकिन मैं अभी तक अम्मा से कोई सवाल नहीं कर सकी थी। उस दिन के बाद मैं बहुत परेशान रहने लग गई थी। अम्मा मुझसे पूछती क्या हुआ है, लेकिन मैं अम्मा को क्या बताती जब अम्मा मुझे कुछ नहीं बताती थी। एक सुबह जब मैं नींद से उठी तो मेरे सारे जिस्म में इस कदर दर्द हो रहा था कि मैं रोने लग गई थी।
अम्मा भी घर पर नहीं थी। मैं पड़ोस में चली गई। वहाँ पर आंटी मुझे देखकर कहने लगी, तुम लोगों ने क्या शुरू कर दिया है? रात भर तेरी माँ घर पर नहीं होती और तेरे चिल्लाने की आवाज़ें भी आती रहती हैं। तुझे पता है सारे मोहल्ले वाले कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई होगी। मैं उनकी बातों से तंग आ गई थी। रात को मैंने अम्मा को बताया तो अम्मा कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो इतनी सुकून की नींद सो रही होती हो, न जाने क्यों ये मोहल्ले वाले मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हैं। मैंने अम्मा की तरफ देखा जो बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे उन्हें डर था जो कुछ वो मुझसे छुपा रही हैं कहीं मुझे उसके बारे में मालूम ना हो जाए। मैंने अम्मा से कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो मेरे बारे में बातें करते हैं तो उन्हें करने दे, हम उनकी ज़बान तो बंद नहीं कर सकते ना। मेरी बात सुनकर अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया था। अगली रात भी यही हुआ। मैं सफ़ेद लिबास डालकर सो गई थी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह मेरी पड़ोसन की बेटी हमारे घर आई हुई थी। मैंने उसे देखा, वो सुबह सुबह हमारे घर क्या करने आई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी, वैसे ही आई हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा। मैं उससे बातें कर रही थी लेकिन वो मुझे बेचैन लग रही थी, जैसे मुझसे कोई बात करना चाह रही थी। अचानक से उसकी नज़र मेरी कलाई पर पड़ी। वो मेरी कलाई पकड़कर कहने लगी, यहाँ पर क्या हुआ है? मैंने कलाई पीछे खींच ली और कहा, कुछ नहीं हुआ। वो मुझे कहने लगी, तुम्हारे घर में कोई लड़का आता है क्या? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और गुस्से गुस्से में कहा कि ये कैसा इल्ज़ाम है, तुम मुझ पर शक कर रही हो, और उसे घर से भगा दिया। वो जल्द ही अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद मैं सोच में पड़ गई, वो मुझसे इतने अजीबोगरीब सवाल क्यों करके गई थी। आज जब अम्मा रात को मेरे लिए सफ़ेद कपड़े लेकर आई तो उनके हाथ में एक सफ़ेद मास्क था। वो मुझे कहने लगी, आज ये डालकर सो जाना। मैं हैरान थी, वो क्या कुछ मुझसे करवा रही थी। उनकी इन हरकतों की मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। न जाने अब वो मुझसे क्या चाहती थी। मैंने दूध पिया तो मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे मेरा सर चकरा रहा हो और उल्टी आ रही हो। मैंने जब अम्मा को अपनी हालत बताई तो अम्मा के चेहरे का रंग फक हो गया। वो खुश्क खून भरती हुई कहने लगी, तुम सोने की कोशिश करो। अम्मा मुझसे बातें कर रही थी और मेरा दिमाग ऐसे घूम रहा था, मुझे उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बोलती रहीं जब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और सुबह जाकर मेरी आंख खुली। मैं दिन भर परेशान रही, पड़ोसन की बातों के बारे में भी सोचती रही कि आखिरकार ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मालूम और अम्मा भी मुझे नहीं बता रही। अम्मा के दिन की नौकरी थी और रात को जब घर वापस आई तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे उल्टियाँ शुरू हो गईं। उस रात अम्मा ने ऐसा कुछ ना किया और मुझे कहने लगी, मैंने तुम्हें अस्पताल लेकर जाना है। अगर तुमसे वहाँ पर कोई पूछे कि क्या करती हो तो तुमने कहना है, पहले नर्स बन रही थी लेकिन अब मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं होती। मैं हैरान थी, अम्मा मुझे झूठ बोलने का क्यों कह रही थी। अम्मा के पास बहुत सारे पैसे भी होते थे। उस रात जब मैं अम्मा के साथ अस्पताल गई तो अक्सर डॉक्टरों और नर्सों की नज़र मुझ पर ही थी। मैं इर्द गिर्द सबको देख रही थी। मेरी अम्मा मुझे एक कमरे में लेकर गई थी। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मुझे अम्मा की बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। सामने डॉक्टर बैठा हुआ था। अम्मा मुझसे जो पूछ रही थी मैं उसका जवाब हाँ में सर हिला कर दे रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ मेरी अपनी अम्मा ही कुछ कर रही हैं। जब वो मुझे लेकर घर आईं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई होश ही नहीं है। घर आते ही मैं कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई थी और मैं बेहोशों की तरह सो गई थी। सुबह मुझे तेज़ बुखार हुआ पड़ा था, सारा जिस्म दर्द से टूट रहा था। मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी खूबसूरती मांद पड़ चुकी है। अम्मा जब कमरे में आई तो मुझे यूं शीशे के आगे खड़ा देखकर थोड़ी हैरान हुई और कहने लगी, क्या हुआ, ऐसे खुद को क्या देख रही हो? मैंने अम्मा को कहा, अब मेरा पहले से ज़्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसी क्यों होती जा रही हूँ, बदसूरत सी। देखे मेरे चेहरे का कितना अजीब रंग हुआ पड़ा है। मेरे साथ हर रात को क्या होता है? मुझे सारी हकीकत बता दें। मैं पैसों के बारे में भी उनसे ना पूछ सकी कि ये बात मुझसे छुपा रही हैं। मैं पूछकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? मेरी बात सुनकर अम्मा खुश खून भर कर रह गईं। फिर मुझे कहने लगी, नहीं, जैसा तुम सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो तुम। मैंने उनकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया था, लेकिन अब मैं क्या कह सकती थी। जब अम्मा अस्पताल चली गईं तो उनके जाने के फ़ौरन बाद ही मेरी पड़ोसन की बेटी आ गई थी।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पिछले कुछ दिनों से कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे कुछ बता नहीं पा रही। आज मुझे कहने लगी, तुम रात मास्क लगाकर सोती हो क्या? उसकी बात सुनकर मुझे हैरानगी हुई। मैं गहरी सोच में चली गई और सोचा कि इसे कैसे मालूम हुआ है कि मैं रात को मास्क लगाकर सोती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और मैंने उससे पूछा कि तुम इस बारे में कैसे जानती हो? उसने कहा कि एक रात मैंने तुम्हें मास्क और सफ़ेद कपड़े पहनकर छत पर घूमते हुए देखा था और उसने मुझसे पूछा कि मुझे बताओ कि ये तुम क्यों पहनती हो। तब मैंने उसे बताया कि मैं ये कपड़े पहनकर सोती हूँ जिससे अम्मी बहुत ज़्यादा पैसे कमाती हैं। वो मुझसे एक अजीब सी फरमाइश करने लग गई थी। वो मुझे कहने लगी, एक रात के लिए तुम मुझे अपने सफ़ेद कपड़े डालकर सोने दो, मैंने भी देखना है तुम्हें कपड़े डालकर जो सुलाती हैं उससे तुम्हारी अम्मा कैसे पैसे कमाती हैं। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से कहा कि नहीं। उसने बस मुझसे ज़िद लगा कर बैठ गई, जो तुम्हारी अम्मा लाती हैं सफ़ेद कपड़े वो मुझे डालने दो, बस एक रात के लिए। मुझे भी बहुत सारा पैसा चाहिए, जैसे तुम्हारी अम्मा के पास होता है वैसे। मुझे भी इस राज के बारे में मालूम करना था, आखिर अम्मा करती क्या हैं। मैंने कहा ठीक है, कल रात मैं तुम्हें दूंगी। उसने तो घर लेकर जाने की बात की थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसे उसके घर लेकर जाने नहीं दूंगी, अपने कमरे में ही रख लूँगी और देखूंगी आखिर मेरे साथ होता क्या है। रात भर जो मेरे जिस्म का सुबह ये हाल हो जाता है। उस दिन जब अम्मा घर आई तो उनके साथ एक लड़का था। ये वही डॉक्टर था। वो मुझे हैरत से देख रहा था। उसकी निगाहें अजीब सी खुद पर महसूस कर रही थी। जब मैं उसे पानी देने लगी तब भी वो मेरे चेहरे की तरफ ही देखता रहा था। अम्मा वहाँ से किचन की तरफ गई और वो मुझे कहने लगा, पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने हैरत से सोचा, ये किस पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है और मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है, जैसे मुझे जानता हो। मैंने कहा, पढ़ाई कौन सी? वो मुझे कहने लगा, नर्स बन रही है ना आप। उसकी बात सुनकर अब मुझे समझ आई थी, मेरी अम्मा ने शायद ये बात फैला रखी थी कि मैं नर्स बन रही हूँ और शायद ये उसके बारे में ही बात कर रहा था। मैंने भी कह दिया, अच्छी जा रही है। वो पानी पीते हुए कहने लगा, रात को तो बहुत ही अजीब लग रही होती हो, दिल करता है तुम्हें। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मैं खुश खून भरती हुई उसकी बात सुन रही थी कि वो क्या बात कर रहा था। अब मुझे अपनी हमसाई की बात याद आई थी, जो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे घर में कोई मर्द आता है क्या। अब तो मुझे असलियत जाननी ही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा था मेरी ज़िंदगी में। ये ज़रूर कुछ तो करता था जो ये ऐसी बातें कर रहा था। वो थोड़ी देर बाद चला गया था। उसके जाने के बाद मैंने अम्मा से कोई बात न की। मुझे अम्मा पर शदीद गुस्सा आया हुआ था। अम्मा ने कुछ सच नहीं बताया था। वो मेरे साथ क्या कर रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। अम्मा घबराई हुई थी, बार बार पूछ रही थी, डॉक्टर ने तुम्हें कोई बात कही है क्या मेरे बारे में? डॉक्टर ने तुम्हें कुछ बताया है क्या? अम्मा की घबराहट मुझे और शक में मुब्तला कर रही थी। उस दिन मैंने छुप कर देखा तो अम्मा के पास बहुत सारे पैसे थे और वो पैसे देकर अम्मा खुद से बातें कर रही थी। खुद से कह रही थी, मैं कितनी लालची औरत हूँ, यूं पैसे की खातिर अपनी बेटी के साथ इतना कुछ कर रही हूँ। अम्मा की अजीबोगरीब बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। शाम के वक्त वो फिर से अपनी ड्यूटी पर चली गई थी, लेकिन रात को अम्मा के आने से पहले ही पड़ोसन हमारे घर आ गई थी और मुझसे पूछने लगी थी, कब आना है तुम्हारी अम्मा ने सफ़ेद जोड़ा लेकर। मैंने उसको कमरे में छुपा दिया था। जब अम्मा ने मुझे सफ़ेद जोड़ा दिया तो मैं उसको देखने लगी थी। अम्मा वहाँ ग्लास दूध का रख कर चली गई थी। इतने में पड़ोसन की बेटी, जो कि कमरे में छुपी हुई थी, बाहर आई। मैंने उसे डालने के लिए कपड़े दिए। उसने जल्दी से कपड़े डाल लिए और मास्क भी पहन लिया। मैंने उसको दूध वाला गिलास भी पकड़ा दिया था। वो गिलास लबों से लगाए दूध पी गई थी। मैं वहाँ ही कमरे में एक अलमारी के पीछे छुप गई थी। वो मुँह पर कंबल ओढ़े लेट गई थी। अम्मा कमरे में आई। अभी अम्मा थोड़ी देर उसके पास ही बैठी थी। अचानक से उसे झटका लगा था। वो एकदम से नीचे की तरफ गिरी थी। वो कमरे की चीज़ें बिखेरने लग गई थी और कमरे में चिल्लाती हुई टकरा रही थी। उस वक्त वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ जो डॉक्टर था, जिसके अस्पताल में अम्मा काम करती थी। मैं हैरत से सामने का मंजर देख रही थी। जो कुछ मैं देख रही थी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं खुश खून भर रही थी। अचानक से ही उसका मास्क गिर गया। जैसे ही उसकी शक्ल वाज़ेह हुई, मैं भी डर गई थी। वो चिल्लाते हुए डॉक्टर कहने लगा, ये कौन है? आपकी बेटी कहाँ है? ये क्या ड्रामा है? अम्मा खुद भी आंखें फाड़े उसको देख रही थी। मैं अलमारी के पीछे से निकली। वो डॉक्टर मुझे भी हैरत से देख रहा था। कभी मुझे देखता तो कभी उस लड़की को। फिर चिल्लाकर कहने लगा, ये सब कुछ क्या है, मुझे बताएं।
अम्मा उसे कहने लगी, तुम अभी जाओ यहाँ से, ये वक्त इन बातों के लिए सही नहीं है, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। अम्मा ने डॉक्टर को भेज दिया था। मैंने सुबह तक अम्मा से कोई बात नहीं की थी क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ अम्मा के बारे में समझ आ चुका था। सुबह होते ही मैं उस लड़की को उसके घर छोड़ कर आ गई थी। उसकी अम्मा ने मुझे कहा, ये वहाँ क्या करती रही थी? मैंने उसकी अम्मा से कोई बात न की और वापस अपने घर आ गई। अम्मा मेरे पास बैठी हुई थी। मैं अचानक ही अम्मा पर फट पड़ी। मैंने गुस्से में कहा, अम्मा ये सब क्या है, मुझे सच बताएं, ये सब कुछ आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? अम्मा मुझे कहने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जिस रात तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई थी। उस रात उस डॉक्टर ने तुम्हें देखा था। डॉक्टर को तुम पसंद आ गई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरी बेटी तो बस 10 जमातें पढ़ी हुई है, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो। वो मुझे कहने लगा कि वो तुम्हें नर्स बनाएगा, इसी वजह से वो तुम्हारा खर्चा देता था, लेकिन मैं तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे लालच आ गया था। अगर तुम्हारी उससे शादी कर दी तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। मैं उसे यही कहती रही कि तुम पढ़ रही हो, इसी वजह से मैं उसे तुम्हारे नाम पर पैसे भी लेती थी। एक दिन वो कहने लगा, आप हमारा निकाह कर दो, जब वो पढ़ लेगी नर्स बन जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी उससे निकाह करा दूँ। इसी वजह से मैंने उसको कहा कि मेरी बेटी को रात के वक्त न जाने क्या हो जाता है, वो पागलों जैसी हरकतें करने ले जाती है। उसको शक हो गया था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने कहा, मैंने आपकी बेटी से मिलना है। इस वजह से मैंने तुम्हें उस दिन ये दवा दी थी कि तुम पागलों वाली हरकतें करो। जब वो मिलने आया था तो तुम ऐसी ही हरकतें कर रही थी। पहली बार दवा ली थी तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसने तुम्हारी कलाई ज़ोर से पकड़ी थी तो तुम्हें निशान बन गया था। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा था। फिर वो परेशान हो गया था तुम्हारी हालत देखकर, मुझे मेडिसिन के पैसे भी देता था। उससे मेरा लालच और बढ़ गया था। मैं उससे पैसे लेने लग गई थी। वो दवाइयों का असर देखने के लिए रोज़ाना हमारे घर आता कि अगर तुम ठीक हो गई हो तो निकाह कर लूँ। लेकिन अब मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या करेगा। मैंने तो उसको धोखा दिया है। मैं अम्मा की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। मुझे लग रहा था अब हम फिर से पहले जैसी हो जाएंगे। घर में पकाने के लिए कुछ नहीं होगा। पहले ही उसने अम्मा पर रहम खाकर अपने अस्पताल में काम दिया था, अब उन्हें वहाँ से भी निकाल देगा। मैंने अम्मा से पूछा, मुझे बताएं आप क्यों नहीं मेरी शादी उसके साथ करना चाहती थी? अम्मा मुझे कहने लगी, मैं चाहती थी जैसे उस डॉक्टर से पैसे ले रही हूँ, किसी और को भी तुम्हारी शादी का लालच देकर ऐसे ही उससे पैसे लूँगी। मुझे रोना आ रहा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी अपनी सगी माँ मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं बुरी तरह से रोने लग गई थी। अम्मा उठकर मेरे पास से चली गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी अम्मा ने मुझे अपनी कमाई का ज़रिया बनाया हुआ था। अब जो करने का मैं सोच रही थी, अम्मा ने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। अब मेरे पास अम्मा से बदला लेने का आखिरी तरीका यही था। अब मैं वो कदम उठाने वाली थी जिससे अम्मा को भी धचका लगने वाला था। मैं घर से चली गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। जब मैं घर आई मेरी हालत देखकर अम्मा मुझे कहने लगी, कहाँ से आ रही हो, ये क्या हालत बनाई हुई है? मैंने अम्मा से हंसते हुए कहा, मैंने आपसे बदला लिया है। मैं वो कराई हूँ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अचानक से वो डॉक्टर सामने आया। मैंने अम्मा को कहा, ये देखें, आप जिसके साथ मेरा निकाह नहीं करना चाहती थी मैं खुद ही कर आ गई हूँ। अम्मा हैरान थी। अम्मा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊंगी। मैंने कुछ महीने तक अम्मा से कोई बात न की। मेरा शौहर मुझे पढ़ा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगा था। मैं नर्स बन गई थी। मैंने अम्मा को भी माफ़ कर दिया था। मेरा शौहर घर में अकेला होता था। फिर जब मैं नर्स बन गई तो अम्मा को भी वो अपने घर लेकर आ गया था। वो बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी अम्मा का भी बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मुझे अम्मा पर कभी कभी गुस्सा भी आता था। लेकिन मेरा शौहर इस कदर अच्छा था, उसने कभी मुझे आज तक ये ताना नहीं दिया था कि तुमने या तुम्हारी अम्मा ने मुझसे पैसे बटोरे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी उसने मुझसे निकाह कर लिया था। मुझे इज़्ज़त देता था। ऐसे लोग बहुत कम दुनिया में पाए जाते हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मेरी बहुत इज़्ज़त करता था। अम्मा अक्सर शर्मिंदा हो जाती थी, उससे माफ़ी भी मांगती थी, लेकिन उसने कभी हम माँ बेटी को शर्मिंदा ना होने दिया। वक्त गुजरता गया। अल्लाह पाक ने हमें औलाद जैसी नेमत अता की। हमारा घर खुशियों से झूम उठा था। नाज़रीन,
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔